السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں انا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائن۔ ایف آئی اے کا چائنا اسکیم میں ایلومینیم مولڈنگ فیکٹری پر چھاپا، کروڑوں کی گیس اور بجلی چوری پکڑ کر فیکٹری سپروائزر کو گرفتار کر لیا۔ ناقص کوالٹی ڈیجیٹل میٹرز خریدنے پر لیسکو کو لاکھوں روپے کا نقصان، ٹینڈر منسوخ کر کے 1900 روپے کا میٹر 2200 روپے میں خریدا گیا۔ ناقص کوالٹی کے میٹر سے بجلی چوری ہونے پر مبنی رپورٹ ایم ڈی پیپکو اور چیف ایگزیکٹو لیسکو کو ہڑتال۔ پھول نہ صحیح لیکن چاکلیٹ کی مٹھاس ایوان میں ضرور نظر آئی۔ ویلنٹائن محبتیں بانٹنے اور اظہار کا دن، خواتین اراکین اسمبلی کے ملبوسات میں سرخ رنگ نمایاں رہا۔ عدالتوں کے سنجیدہ ماحول پر ویلنٹائن ڈے کا رنگ غالب رہا۔ وکلاء پھولوں کی ہمراہی میں قانونی دلائل دیتے رہے۔ ایل ڈی اے کے امپلائیز ویلفیئر یونین شاہین نے بھی ملازمین میں پھول تقسیم کیے۔ صدر یونین شاہین عباس بٹ، جنرل سیکرٹری عقیل اکرم اور سید محمد شگری کی شرکت۔ کافی پلانٹ انتظامیہ کی جانب سے ایس او ایس ولیج کے بچوں کے لیے ویلنٹائن ڈے پر خصوصی انتظامات۔ بچوں نے فیس پینٹنگ کروائی اور مختلف ڈرائنگز بنائی۔ اسٹیج بینڈ کے گیتوں پر بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ گلوکارہ اینی کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے بچوں کے ساتھ منا کر بے حد خوشی ہوئی۔ سیشن عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ عارضی طور پر مؤخر۔ ہائی کورٹ اور لاہور بار کی کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت۔ 16 فروری کو 2 سیشن ججز عدالتیں نہیں لگائیں گے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رمضان چودھری کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت لاہور کی عدالتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن ختم نہ کیا تو وکلاء بھرپور احتجاج کریں گے۔ تجاوزات مافیا سے وابستگی کی شکایات آپریشن کامیاب بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ نے 319 ریگولیشن انسپیکٹرز ادھر ادھر کر دیے۔ اکثر ملازمین 13 سال سے ایک ہی ٹاؤن میں تعینات تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب پر ریٹائرڈ فوجی افسران کا مکمل ہولڈ۔ ڈی ایم جی گروپ جوائن کرنے والے سابق فوجی افسران نے اہم تقرریاں حاصل کر لی۔ ہوم سیکرٹری اعظم سلیمان خان، اسپیشل سیکرٹری ہوم سیف انجم خان، ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکورٹی ثاقب ظفر ریٹائرڈ کیپٹن ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس سہیل اشرف نیوی سے ریٹائرڈ، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری ڈی پی کرنل وضاحت حاضر سروس فوجی افسر ہیں۔ مشیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا ابتما پنجاب کے چیئرمین ایس ایم تنویر، سینئر رہنما گوہر اعجاز، ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کے ہمراہ جناح ہسپتال کا دورہ۔ شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر میں مریضوں کی عیادت کی۔ مشیر صحت نے بہترین کارکردگی پر ڈاکٹرز اور عملے میں بونس تقسیم کیا۔ انٹرپول کی مدد سے فیوچر کنسرن کے مالک قاسم ملک کی گرفتاری کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ مراسلے میں تمام سفارشات خانوں سے بھی مدد مانگ لی گئیں۔ ادھر ڈاکٹر عثمان انور نے صاف کی اے سی آر 1 مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جعلی وردیاں پہن کر ایئرپورٹ آنے جانے والے مسافروں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ سی آئی اے پولیس نے سرغنہ سمیت 8 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ نذیر قادر ملز لمیٹڈ، ایس این ایس ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ، شریف ٹیکسٹائل انڈسٹریز، پلاٹینم سپننگ سمیت 26 ملز غیر فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ غیر فعال ملز ٹیکس ریفنڈ کلیم نہیں کر سکیں گی۔ 3 روزہ میڈ ان انڈیا شو کا تمام تر رعنائیوں کے ساتھ آغاز۔ ایکسپو سینٹر میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر خرم دستگیر اور انڈین ہائی کمشنر ڈاکٹر راگھوان سمیت ممتاز مقامی اور بھارتی کاروباری شخصیات کی شرکت۔ مسجد وزیر خان سے ملحقہ دکان سے ملنے والی الماری میں چھپے بھیدوں کا آخر عقدہ حل کھل گیا۔ دکاندار اور سرکاری افسران کو خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ الماری سے صرف پرانے رجسٹر اور کھاتے نکلے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے سرکاری افسران کو قواعد کے برعکس گھروں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ غیر تسلی بخش جوابات دیتے رہے۔ نیشنل پروگرام برائے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کے 50,000 ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ۔ سپروائزر، لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت عملے سے تعلیمی اسناد، ڈومیسائل اور دیگر قواعد کی تفصیلات طلب۔ ادھر محکمہ جیل میں 1200 وارڈرز اور ہیڈ وارڈرز کی بھرتیوں کی منظوری۔
UBL کے گروپ ہیڈ جودت حسین اور ملیحہ خان کا لاہور کی مختلف برانچز کا دورہ، کسٹمر سروسز کا معائنہ اور پریمیم ریڈ کارپیٹ بیکنگ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ پورا میں پتنگ کی ڈور سے 2 افراد کے زخمی ہونے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، ضلع انتظامیہ اور پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ پولو کلب سے 11 گھوڑوں کی مبینہ چوری کی تحقیقات جاری، ریس کورس پولیس کے مطابق صدر پولو کلب عبدالحی اور سیکرٹری کے خلاف عدالتی حکم کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل کالونی میں پراسرار طور پر ہلاک گھریلو ملازمہ کی پوسٹ مارٹم مکمل، ابتدائی رپورٹ کے مطابق 13 سالہ ملازمہ کی کلائیوں پر رسیوں کے نشانات ہیں۔ گورنر پنجاب سے نارویجین سفیر سیسیا لینزورک کی ملاقات، سفیر کا کہنا ہے کہ پاک ناروے تجارتی حجم ناکافی ہے، تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے تجارتی وفود کے تبادلے بڑھانا ہوں گے، جبکہ نارویجین سفیر کی لیاقت بلوچ سے بھی ملاقات۔ سینٹ اینتھنی چرچ لاہور میں آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ کی مسند نشینی کی تقریب، پاپائے روم کے پاکستان میں سفیر اینڈ گریپی ناپارا نے حلف لیا، مسیحی برادری کا جشن، گیتوں اور نغموں کے ذریعے نئے آرچ بشپ کو خوش آمدید کہا۔ سمپلی صوفی پروجیکٹ کی نئی برانچ کا ڈیفنس میں افتتاح کر دیا گیا، افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر حمزہ صوفی، مسز سعدیہ طارق صوفی، رافع اکرم سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ MPA یاسین سہل اور آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اشرف بھٹی نے ڈیفنس میں اسلامک اسٹیٹ کا افتتاح کر دیا، تقریب میں مختلف مارکیٹوں کے تاجر رہنماؤں کی شرکت۔ صدیق ٹریڈ سینٹر تاجر یونین کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، اعتزاز احسن، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، احمد بلال صوفی، اکرم شیخ ایڈوکیٹ، DG FIA سعود مرزا، ایڈیشنل IG موٹر ویز رائے الطاف کی آمد۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ میں پوسٹ گریجویٹ کالجز کے طلباء کے درمیان ڈویژن کی سطح پر اردو مباحثے کا انعقاد، طلباء و طالبات نے طالبان سے مذاکرات کے حق اور مخالفت میں دلائل پیش کیے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کینیڈ کالج کا اسپورٹس ڈے پر رنگ و نور کی برسات، 500 طالبات نے ایروبکس دھنوں پر پرفارم کر کے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے، حمزہ شہباز شریف نے انعامات تقسیم کیے۔ اور شہر کے بعض علاقوں میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ FIA کی ٹیم کا چائنا اسکیم میں ایلومینیم مولڈنگ فیکٹری پر چھاپا، کروڑوں کی گیس اور بجلی چوری پکڑ کر فیکٹری سپروائزر کو گرفتار کر لیا۔ FIA حکام کے مطابق چائنا اسکیم میں نادر شاہ نامی شخص نے ایلومینیم مولڈنگ فیکٹری بنا رکھی تھی، جہاں پر وہ گزشتہ 5 سال سے لاؤڈ سپیکرز کے ٹب اور دیگر سامان تیار کر رہا تھا۔ FIA حکام کے مطابق فیکٹری مالک 4 انچ کٹر پائپ لائن سے بائی پاس کر کے گیس چوری کر رہا تھا، جبکہ بجلی کے میٹر بھی ٹیمپرڈ تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ملک سکندر حیات نے بتایا کہ نادر شاہ کے سپروائزر کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناقص کوالٹی کے ڈیجیٹل میٹر سے لیسکو کو دوہرا نقصان، مہنگے میٹرز بجلی چوری کا بھی آسان ذریعہ بن گئے، چیف انجینئر آپریشنز نے رپورٹ MD پیپکو اور چیف ایگزیکٹو لیسکو کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے چند ماہ قبل سنگل اور 3 فیز میٹرز خریدنے کا ٹینڈر جاری کیا تھا، جس کے مطابق کمپنی کو 1 میٹر 1900 روپے میں دستیاب تھا، لیکن 2 ماہ بعد ہی اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا۔ بعد میں وہی میٹر اوسط 300 روپے اضافے کے ساتھ 2200 روپے فی عدد میں خریدنے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ DCO لاہور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے 18 فروری سے شہر میں تجاوزات کے خلاف مہم شروع کرنے کے لیے تمام ٹاؤنز کا عملہ تبدیل کر دیا، جبکہ 400 اہلکاروں اور آف روڈ مشینری کو بھی ورکنگ میں لاتے ہوئے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سٹی 42 کے پروگرام نیوز نائٹ میں شہر میں تجاوزات کے خاتمے پر بحث کی گئی، جس میں DCO احمد جاوید قاضی، مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری MPA خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف مہم میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ضلعی انتظامیہ کو 101% سرپرستی حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی تجاوزات کرنے والے کسی شخص کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر حکومت کی توجہ تجاوزات کے خاتمے
की तरफ दिलाने पर प्रोग्राम न्यूज नाइट की भी तारीफ की। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर खालिद परवेज का कहना था कि वो अपने घर यानी उर्दू बाजार से इस मुहिम का आगाज कराने के लिए तैयार हैं। ताहम ये मुहिम नेक नियति और ईमानदारी के साथ बिला इम्तियाज व बिला तसलसल चलनी चाहिए। लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के चीफ ऑर्गेनाइजर सफदर भट्ट का कहना था कि उनके साथ लाहौर में 450 मार्केटें और 86 बोर्ड्स हैं। वो तजावजात के खात्मे के लिए इसी तरह मुकम्मल ताउन करेंगे जिस तरह लिबर्टी में तजावजात खत्म कराई गई। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मेजबान नजम अली खान की तरफ से रेडी बानों के बेरोजगार होने के खदशे का इजहार पर कहा कि बाकायदा रेडी बाजार बनेंगे। रेडी बानों की फहरिस्तें तैयार करने के अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत उनके अंगूठों से उनकी शनाख्त होगी। शहर भर में खूबसूरत डिजाइनों की रेडियों के लिए कुव्वत से माइक्रो फाइनेंसिंग भी करवाई जाएगी, जबकि बड़ी सड़कों पर रेडियां खड़ी करने के औकात मुकर्रर होंगे। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना था कि पहले मरहले में बिल्डिंग लाइन की पाबंदी करते हुए तमाम सड़कें और चौक क्लियर कराए जाएंगे और अगले महीने के आगाज तक लाहौर तब्दील नजर आएगा। DCO का मजीद कहना था कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ के लिए इनाम, जबकि नाकाम रहने वालों के लिए सजा का निजाम भी मुतारिफ करवा रहे हैं। हुकूमत ने नेशनल प्रोग्राम बराए फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के 50,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ वर्कर समेत अमले से तालीमी असनाद, उमेसेल और दीगर कवायद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। हुकूमत की जानिब से नेशनल प्रोग्राम बराए फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का फैसला कर लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के गुज़श्ता बरसों से जारी एहतजाज के बायस हुकूमत ने फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम की मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि अप्टमा के 20 करोड़ रुपए के अतिये से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नए इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर का मनसूबा ताखीर का शिकार होने पर अफसोस है। जना अस्पताल में सिटी 42 से बातचीत करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अप्टमा के मशकूर हैं कि वो अतिया दे रहे हैं, जल्द PIC के इमरजेंसी ब्लॉक के मनसूबे पर काम शुरू कर देंगे। शुक्रिया अदा करना था अप्टमा का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से जो इनकी ऑफ़र है 20 करोड़ की, महकमा सेहत पंजाब और हुकूमत पंजाब उसको इंतहाई खुशामदीद कहती है। जो PIC की एमरजेंसी है उसमें मरीज़ों का हाल ठीक नहीं है और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो उसमें देर की गई है मैं उस पर इंतहाई अफसोस का इज़हार करता हूँ। मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का अप्टमा के सीनियर रहनुमा गौहर एजाज और अप्टमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर के हमरा जना अस्पताल का दौरा। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर्स और अमले में बोनस तकसीम किया। तफसीलात जानते हैं जाहिर चौधरी से। जना अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स और अमले को बोनस देने के लिए तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौका पर एप्टमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर, एप्टमा के सीनियर रहनुमा गौहर एजाज, मारूफ बिजनेसमैन मियां शकील, MPA सैफुल मलूक खोकर, प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद एजाज, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी और MS डॉक्टर अब्दुल रऊफ समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले के दीगर अरकान भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने एप्टमा रहनुमाओं के हमरा डायलिसिस सेंटर में मरीजों की इजाजत की और तोसी मनसूबे का भी दौरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए गौहर एजाज ने बताया कि इस वक्त 100 मरीजों को जदीद तरीन डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मार्च में तोसी मनसूबा मुकम्मल होने के बाद यह सहूलत 300 मरीजों को मैसर होगी। और आज हम उस ख्वाब की दोबारा ताबीर की तरफ जा रहे हैं कि इस 100 पेशेंट से अब 300 की तरफ कैसे जाएं। और 5 साल का वेटिंग लिस्ट हमारे पास इस हॉस्पिटल में जो आज मौजूद है। हम चाहते हैं कि 16 मार्च को 2014 आज से जो है 1 महीना के बाद हम उस वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करके उन तमाम पेशेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकें। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि शेख एजाज अहमद ट्रस्ट की जानिब से जिस जांफशानी से दुखी इंसानियत की खिदमत की जा रही है, ये काबिल तकलीद मिसाल है। इस जैसे जो डायलिसिस वार्ड है, फिर उसकी जो एक्सटेंशन है, ये मोटिवेशन है। पाकिस्तान में फिलंथ्रॉपी और अल्लाह की राह में खर्चे वाले बेशुमार है, उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत। ख्वाजा सलमान रफीक ने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स और अमले में बोनस भी तकसीम किए, जबकि एप्टमा रहनुमाओं और डॉक्टर्स के हमरा जना अस्पताल में अतिया से तामीर किए गए उमर ICU का दौरा करके डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की असामियां जल्द तख्लीक करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वैलेंटाइन डे मोहब्बतें बांटने और उसके इजहार का दिन है। इसी दिन की मुनासबत से खवातीन अरकान असम्बली के मलबूसात में सुर्ख रंग नुमाया रहा, जबकि राना सनाउल्लाह खान ने तोहफे से इनकार करके अपनी रुकन सूबाई असम्बली का दिल ही तोड़ दिया। अहवाल जानते हैं हामिद से। वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां हर कोई अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करता नजर आता है,
वहीं पंजाब असम्बली की खवातीन अरकान असम्बली भी किसी से पीछे नहीं है। फूल तो ना सही, लेकिन चॉकलेट की मिठास ईवान में जरूर नजर आई। मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली सायरा इफ्तिखार ने सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह खान को चॉकलेट्स ऑफर की, लेकिन शायद राना सनाउल्लाह को मीठा मना है, जिन्होंने इस मासूम सी ख्वाहिश को मानने से इनकार कर दिया। चॉकलेट्स तो नहीं खाई, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वैलेंटाइन डे को इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों को खुलकर अपने जज्बात के इजहार का मौका मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, इनके ऊपर उस तरह से जो है वो रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए कि ये इस्लामिक है, ये गैर इस्लामी है। मैं समझता हूँ कि ये हर इलाके के अपने अपने त्यौहार हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से इनकार होने के बाद सायरा इफ्तिखार ये कहती नजर आई कि वो अपनी दोस्त फायजा मलिक के लिए चॉकलेट्स लाई हैं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है फायजा मलिक, पीपल्स पार्टी की, मैं उसको जरूर दूंगी। मैं सादिया सुहेल पीटीआई की, उसको जरूर दूंगी। मेरी अपनी फ्रेंड है आलिया, डॉक्टर आलिया आफ्ताब, मैं उसको जरूर दूंगी। व्हाई नॉट। सायरा इफ्तिखार की तरह दूसरी कई अरकान असम्बली सुर्ख जोड़े या सुर्ख मेकअप में नजर आई। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर डार, सिटी 42। आसिन वैलेंटाइन डे के मौके पर MM आलम रोड पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। नबील रजा मलिक भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। नबील, बताइएगा, आप इस वक्त MM आलम रोड पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा समय है वहां पर वैलेंटाइन डे के मौके पर? जी रेहान, मैं इस वक्त लाहौर की खूबसूरत तरीन शाहराहों में से जो शाहराह है MM आलम रोड, उस पर यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त। और जैसा कि सभी लाहौरियों को पता है, और इवन जो लाहौर शहर से जिनका ताल्लुक नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि MM आलम रोड जो है ये खाने पीने की मुख्तलिफ जो यहाँ पर आउटलेट्स हैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर जानी जाती है। और अगर ये कहा जाए कि लाहौर की फूड स्ट्रीट में एक फूड स्ट्रीट ये भी है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने पीने के ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं आलमी मेयार के, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने अहल खाना के साथ खुशियों के लम्हात गुजारते हैं। और अगर बात की जाए आज वैलेंटाइंस डे के हवाले से, तो यहाँ पर जितने भी MM आलम रोड के ऊपर जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो खचाखच बने हुए हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लाहौरिये जो हैं वो पहुँच रहे हैं वैलेंटाइंस डे की खुशियाँ मनाने के लिए कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और कुछ यहाँ पर शराबी लाहौरिये जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम गुजरावाला से। गुजरावाला से आ रहे हैं? मैंने तो कह दिया आप लाहौरी हैं। नहीं, मैं तो लाहौर में लाहौरी हैं। अच्छा, गुजरावाला से क्या लेने आए आप यहाँ पे, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं। कोई मैसेज देंगे आप लाहौरियों के कि कैसा लगा आपको लाहौर विजिट किया? तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी मैं बड़ी दफ़ा हो चुका हूँ। जी, ये लाहौर शहर के वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए गुजरावाला से ये फैमिली आई है, और इत्तेफाक से भी गुफ्तगू के दौरान ही इनसे मुलाकात होगी और इन्होंने ये बताया कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स सड़क के उस जानिब खड़े हैं जो कि ट्रैफिक की वजह से सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप ये बताओ कि आप कहाँ से आए? मैं भी गुजरावाला से आए हो? गुजरावाला से लाहौर क्यों आए हो? गुजरावाला में लोगों के दिल नहीं है? वहाँ पे वैलेंटाइन नहीं सेलिब्रेट करते? वहाँ पे भी करते हैं, पर यहाँ पे क्या मजा है लाहौर में वैलेंटाइन का? वैसे ही अपना मजा, गुजरावाला लाहौर जाना विजिट भी हो जाता है, देख भी लेते हैं सारा, और वैलेंटाइन डे भी मना लेते हैं। जी, आपने देखा कि ये जो गुजरावाला से आने वाले शहरी, इनका कहना है कि लाहौर के वैलेंटाइंस का अपना ही मजा है, और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं लाहौरियों के जोशो खरोश से, और जो खाने पीने की अशिया हैं उनसे भी ये बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त रेस्टोरेंट्स की ये सूरत हाल है कि खचाखच लाहौरियों से और इवन जो दूसरे शहरों से आने वाले पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, खचाखच भरे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है। लोग जो है वो 2-2 घंटे की वेटिंग लिस्ट पे यहाँ पर बैठे हुए, और इतना ज़्यादा यहाँ। बहुत शुक्रिया नबील, MM आलम रोड से आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, नबील रज़ा मलिक MM आलम रोड पर मौजूद थे। वैलेंटाइन डे के मौके पर शहरियों की कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आए हैं और वैलेंटाइन डे की खुशियों में शरीक हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पर जहाँ शहर भर में मोहब्बतें बांटने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, वहीं अदालतों के संजीदा माहौल में वकला भी किसी से पीछे न रहे। अदालतों में पेशी के साथ साथ एक दूसरे को फूल भी पेश करते रहे। वैलेंटाइन डे ने अदालतों के संजीदा माहौल को भी रंगीन कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट बार के अहाते में हर तरफ सुर्ख फूलों का राज रहा। वकला अपने साथियों को फूल पेश करके अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। वकला का कहना था कि वैलेंटाइन डे सिर्फ प्रेमी जोड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि आपस की छोटी छोटी रंजें से खत्म करके एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने का दिन है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर यूनियन शाहीन LDA की जानिब से वैलेंटाइन डे पर मुलाजमीन में मोहब्बत के इजहार के लिए फूल तकसीम किए गए।
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस जौहर टाउन में फूल तकसीम करने के मौके पर सदर एम्प्लॉइज वेलफेयर यूनियन शाहीन अब्बास भट्ट, जनरल सेक्रेटरी अकील अकरम और सैयद मोहम्मद शिगरी समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। यूनियन ओहदेदारों का कहना था कि 14 फरवरी मोहब्बत के इजहार का दिन है, जहां तक हो सके मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए। वैलेंटाइन डे प्यार मोहब्बत बांटने का दिन तस्वुर किया जाता है और जब प्यार और मोहब्बत बच्चों में बांटा जाए तो वैलेंटाइन डे की खुशी दोबाला हो जाती है। कॉफी प्लैनेट इंतजामिया ने SOS विलेज के बच्चों के लिए वैलेंटाइन डे पर खुसूसी इंतजाम किए। रजा जैदी की ये रिपोर्ट देखते हैं। वैलेंटाइन डे की खुशियां बांटने के लिए कॉफी प्लैनेट की मैनेजमेंट ने SOS विलेज के बच्चों के लिए खुसूसी इंतजाम किए। कॉफी प्लैनेट को वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से खूबसूरती से सजाया गया था। कॉफी प्लैनेट के CEO काशिफ अनवर, डिजाइनर साइम अली दादा और गुलकारा एनी का कहना था कि उन्हें वैलेंटाइन डे SOS विलेज के बच्चों के साथ मनाकर बेहद खुशी हुई। इस तरह हमने SOS के बच्चों को बुलाया, हम ये प्यार उनके साथ बांटते हैं जो कि एक अंडर प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं। एक अच्छा वैल्यूएबल टाइम गुजरा है, द किड्स आर हैविंग फन, वी आर एंजॉयिंग विद देम, वी आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देम। मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने खूबसूरत हैं और इतना वो अपने एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम। इट्स रियली नाइस, इट फील्स गुड टू बी हियर टुडे बच्चों के साथ। बच्चों का प्यार बहुत इनोसेंट होता है, बहुत प्योर होता है और उनके साथ बैठ के बात करना मज़ा आता है, अच्छा लगता है। SOS विलेज के बच्चों ने फेस पेंटिंग करवाई और मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाई। बच्चों को वैलेंटाइन डे की खुशी में पिज्जा, कपकेक्स, कॉफी और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया भी दी गईं। बच्चों का कहना था कि उन्हें कॉफी प्लैनेट में वैलेंटाइन डे मनाकर बेहद मजा आया। वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें यहाँ से गिफ्ट भी मिले हैं। यहाँ पे हमने वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं और हमें बहुत मजा आया, खाना भी बड़े मजे का था। इधर मुझे बहुत मजा आ रहा है और इधर हमें बहुत अच्छी खाने की चीजें मिली हैं। बच्चों की खुशी को दोबाला करने के लिए सीज बैंड ने मुख्तलिफ गाने गाए, जिस पर बच्चे खुशी से झूम उठे। आखिर में गुलकारा एनी ने बच्चों में कॉफी प्लैनेट की जानिब से तैयार करदा गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए। ऐसी तकरीबात के इनेकाद से जहां बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का मौका मिलता है, वहीं उनके एहसास महरूमी को दूर करने में भी मदद मिलती है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ रजा जैदी, सिटी 42। मुनफरिद अंदाज के बायस शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली गुलकारा एनी कहती हैं उनका कोई वैलेंटाइन नहीं, वो 14 फरवरी का दिन अपने वालिदैन और कजन्स के साथ गुजारेंगी। मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मेरा वैलेंटाइन मेरे मम्मा पापा है, माय फ्रेंड्स, एंड आज मैं एक्चुअली सारा दिन अपने कजन्स के साथ गुजारूंगी। we're just gonna have a good time। वैलेंटाइन डे के मौके पर किनेट कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स डे में रंगो नूर की बरसात। 500 तालिबात ने एरोबिक्स धुनों पर परफॉर्म करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मेहमान खुसूसी मियां हमजा शहबाज और शाइस्ता परवेज मलिक ने इनामात तकसीम किए। इजाज़ वसीम बाकरी की ये रिपोर्ट। किनेट कॉलेज मेन ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले सालाना स्पोर्ट्स डे के मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज और MNA शाइस्ता परवेज मलिक थे, जबकि प्रिंसिपल किनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर निगत खान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स नौशीन हनीफ, हेलन खोखर, इरफानुल्लाह खान और फैकल्टी समेत तालिबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। स्पोर्ट्स डे के आगाज पर तालिबात ने खूबसूरत मार्च पास्ट करके मेहमान खसूसी से दाद वसूल की। तालिबात से खिताब करते हुए हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत खेलों के फिरोग के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। कबड्डी टीम टू KTM पंजाब which managed to enter into semi-finals. So this is a glimmer of hope that the government could show to the students, to the youth of this country. Yes, cricket team will also be sent, inshallah. स्पोर्ट्स डे के रवायती मुकाबलों चाटी रेस, म्यूजिकल चेयर और सैक रेस के मुकाबलों में तालिबात ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। मुझे खुद खुशी हो रही है कि हम इस एरोबिक्स का पार्ट थे और हमने पार्टिसिपेट किया और एरोबिक्स में बहुत मजा आया। हर टाइम स्टडी तो बंदा कर नहीं सकता, ये चीज़ हो तो बंदा एंजॉयमेंट के स्टडी करने में भी फिर मजा आता है।
500 तलबात ने वैलेंटाइन डे, मौसम बहार और स्पोर्ट्स डे की मुनासबत से मुख्तलिफ रंगों के मलबूसात में एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा किया, जिस पर हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इवन डबल कॉम्बिनेशन हो गया था वैलेंटाइन डेज एंड स्पोर्ट्स से, एंड दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैलेंटाइन लव का मैसेज देता है और स्पोर्ट्स से यूनिटी का। मुख्तलिफ इवेंट्स में नुमाया खेल पेश करने वाली खिलाड़ी मेडल्स और ट्रॉफियां मिलने पर खुश नजर आईं और आइंदा बेहतर खेल पेश करने का अज़म जाहिर किया। सख्त तालीमी शेड्यूल की वजह से तालबात साल भर स्पोर्ट्स डे का इंतजार करती हैं। आज केसी गर्ल्स ने न सिर्फ स्पोर्ट्स डे को भरपूर इंजॉय किया, बल्कि शानदार एरोबिक्स का मुजाहरा करके हाजरीन को भी भरपूर तफरीह फराहम की। कैमरा टीम के साथ इजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। मस्जिद वजीर खान से मुल्हिका दुकान से मिलने वाली अलमारी में छुपे भेदों का आखिर उक्ता हल हो गया। दुकानदार और सरकारी अफसरान को खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि अलमारी में खजाना नहीं सिर्फ वही खाते थे। रजा खरल की ये रिपोर्ट। अलमारी क्या मिली, महकमे और शहरी खजाने की मलकियत जताने के लिए एक दूसरे से बाजी ले गए। कोई कहता नवाजरात हैं तो कोई जेवरात की बात करता, और फिर इन सब के सामने अलमारी खुली तो निकले बही खाते, और वो भी 1948 से लेकर 50 के। कागजात की तो सच कोई वर्थ नहीं है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के नहीं है, लेकिन ये जो अलमारी है ये क्योंकि ब्रिटिश पीरियड की है, इसको ट्रीट करके क्लीनिंग इसकी करके इसको किसी भी म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए ले जाया जा सकता है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के तहत शहर की तज़य्युन और आयश के अमल में ऐसी अशिया का मिलना मामूल की बात है, और फिर दावेदारों का हुजूम भी शहर की रवायत है। इस अलमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनार 100 बीमार। ये मेरे इलाके से निकली, मेरे घर में से निकली, दुकान में से निकली, तो ये मेरी होगी। दूसरा, फिर जो हमारे इतने ज़्यादा महकमे हैं, आर्कियोलॉजी है, म्यूजियम है या औकाफ वगैरह हैं, जो भी उस जगह को ओन करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये हमारी है। नहीं, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा था पहले भी 50% मुझे यकीन था कि एक साइड इसकी खुली हुई है, वो तो बिल्कुल खाली है। दूसरी साइड जो है वो बंद थी, वो मुझसे नहीं खुली। उसमें डाउट था कि शायद इसमें कुछ शायद निकला है। अलमारी चूंकि बरतानवी दौर की है, इसलिए माहिरीन के नज़दीक इसे लाहौर म्यूजियम में रखा जा सकता है, जबकि कागजात की कोई अहमियत नहीं। पिछले कुछ अरसे से खबरों में रहने वाली इस अलमारी से कोई खजाना तो नहीं मिला, बल्कि कुछ कागजात मिले हैं, मगर इस अलमारी की अपनी तारीखी अहमियत की वजह से इसे कौमी तहवील में लिया जा सकता है। मगर इसके बारे में फैसला एक कमेटी करेगी, जो अभी भी कर सकती है या अगले चंद दिनों तक कर सकेगी। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ रजा खरल, सिटी 42। 3 रोज़ा मेड इन इंडिया शो का तमाम तर रानाइयों के साथ आगाज हो गया। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर और इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान डॉक्टर राघवान समेत मुमताज़ मकामी और भारतीय कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट। भारत से आने वाले मेहमानों में फेडरेशन इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सीनियर नायब सदर मिस ज्योतिसाना, सार्क चैम्बर के सदर विक्रमजीत सिंह, डिप्टी इंडियन हाई कमिश्नर गोपाल बैगले, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया अरविंद मेहता, पुणे मेहता, अलका त्यागी, अंबिका शर्मा, गौतम गौर, रोहित सिंह, विनोद जनेजा, राजेश अग्निहोत्री, परजीत कौर सिंह और वी एस पंडित शामिल हैं। इनके अलावा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर मियां तारक मिसबाह रहमान, काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अली मलिक और चेयरमैन लाहौर टाउनशिप एसोसिएशन जहीर भुट्टा समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और मुमताज कारोबारी शख्सियात भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। भारतीय फनकारों ने रवायती तरीके से सिंक बजाकर इफ्तिताही तकरीब का आगाज किया। इस मौका पर वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि हुकूमत हमसाया मुल्क भारत के साथ मजबूत बुनियादों पर तजारती रवाबत इस्तवार करना चाहती है। दोनों मुल्कों की खुशहाली का राज मईशतों की मजबूती में ही पोशीदा है। The trade that Pakistan and India are embarked upon and which we hope to improve in the coming years will be the engine of prosperity for our peoples, for the people of India and for the people of Pakistan. सार्क चैम्बर के सदर विक्रमजीत सिंह और फिकी की सदर एनूद सना ने कहा कि दोनों मुल्कों में तजारती सरगर्मियां तेज होने से ही खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। ये ट्रेड ही है, कॉमर्स ही है जो दोनों मुल्कों को बांध सकता है, और मैं समझता हूँ कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की अच्छी जिंदगी को सुधारने में, उनको प्रोग्रेस लाने में
आगे लेके जा सकता है। हमें मिलकर बुलंदी का नया रास्ता बनाना है। यहाँ तक आ गए हैं हम, यहाँ से आगे जाना है। नमस्कार, खुदा हाफिज। नुमाइश में दिलकश और दीदादेव डिजाइनों की बेशकीमत ज्वेलरी, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, चाय, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से मुतल्लिका मशीनरी के नमूने भी रखे गए हैं। नुमाइश में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय मेहमानों का कहना है कि दोनों मुल्कों को तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए नॉन टेरर बैरियर ख़त्म करना होंगे और वीज़ा प्रोसेस का अमल मज़ीद आसान बनाना होगा। कैमरामैन अली नुमान के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सिंपली सूफी प्रोडक्ट्स की नई ब्रांच का डिफेंस में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सादिया खान की रिपोर्ट। जी ब्लॉक में मुनक्किद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर हमजा सूफी, इनकी वालदा मिसेस सादिया तारिक सूफी, राफिया अकरम समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ब्रांच का इफ्तिताह मिसेस सादिया तारिक सूफी ने किया। इस मौके पर बात करते हुए हमजा सूफी का कहना था कि सूफी इत्माद का नाम है जिसने सालों से अपनी रवायत बरकरार रखी हुई है। उन्होंने कहा कि डिफेंस में नई ब्रांच का इफ्तिताह लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर किया गया है। जितने इस एरिया में लोकेलिटी में लोग DHA में रहते हैं उनके लिए स्पेशली ये दुकान खोली गई है ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना DHA के वो कवर किए जाएं जो सिंपली सूफी की प्रोडक्ट्स पे एतमाद करते हैं। मिसेस सादिया सूफी का कहना था कि सूफी की प्रोडक्ट्स तमाम उम्र के लोगों में यकसा मकबूल हैं। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को मज़ेदार खानों की तैयारी में अब वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सूफी ने मुख्तलिफ डिशेस मुतारिफ करवाकर ख्वातीन की मुश्किल को आसान कर दिया है। ये थोड़ी सूफी ने मुश्किल आसान कर दी है। बच्चों को पसंद होता है जो वो कहते हैं जी अम्मी ये फ्राई कर दे, वो कर दे फ्राई। फिर बच्चों को तो स्पेशली स्पेस नगेट्स और इस तरह की चीज़ें पसंद है। टेस्ट बहुत अच्छा है, उसके अलावा कन्वीनियंस बहुत क्रिएट हो गई है लोगों के लिए। सार्फिन की सेहत और मेयार को बरकरार रखकर सिंपली सूफी ने बता दिया है कि किस तरह अपनों का एतमाद जीता जा सकता है। कैमरामैन बिलाल जफर के हमरा सादिया खान, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरशानी ने एजर्टन रोड पर ब्लू कैसल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया। एजर्टन रोड पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरशानी ने ब्लू कैसल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। तकरीब में MNA परवेज मालिक, CEO ब्लू कैसल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, जाहिद कयानी, डायरेक्टर कंवर अली, तैमूर कयानी, हफीजुल्लाह बाबर और आबिद मीर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अली गोरशानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल पर बेकार ला रही है। डिफेंस सबवे ब्रांच की कामयाबी के 5 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। T ब्लॉक में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में डायरेक्टर्स मुदस्सिर शफीक, हारून रहीम, मैनेजर वकार बशीर, सेल्स ऑफिसर अदील मसूद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका से बात करते हुए मुदस्सिर शफीक का कहना था कि सबवे ने अपने मयार से सबके दिल जीत लिए हैं और यही बात उनकी कामयाबी की वजह है। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे। सिटी वेस्ट ट्रेड सेंटर ताजिर यूनियन के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्फ उठाने वालों में सदर सिद्दीक ट्रेड सेंटर ताजिर यूनियन सैयद अजहर सिद्दीक शाह, नायब सदर शकील खान, चेयरमैन मिर्जा अब्दुल मजीद बेग, शरीक चेयरमैन मियाँ शफीकुर रहमान, शौकत अली, मियाँ रिजवान, अजीम खान, खुरम इम्तियाज, राना जफर, मियाँ साकिब, सुहेल खान, एहतशाम जावेद, शेर वहाब, शेख आमिर, आमिर डिजाइनर शामिल थे। सेंट एंथनी चर्च में आर्च बिशप सब्सटेंट फ्रांसिस शॉ की मस्जिद नशीनी की तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान भर से बिशप और पादरी शरीक हुए। रजा खनल की ये रिपोर्ट। आर्च बिशप सल्डाना की रिटायरमेंट के बाद सेबास्टियन फ्रांसिस शाह की बतौर आर्च बिशप लाहौर तकर्री मसीही बरादरी के लिए इकट्ठे होकर जश्न मनाने का एक अहम मौका था। पापाए रूम के पाकिस्तान में सफीर एडगर पीना पारा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च की तारीख पर रोशनी डाली और कहा कि तालीम के फरोग में इसका किरदार ग्रां कदर रहा है। This church in the heart of Punjab. इस मौके पर गीतों और नगमों के जरिए नए आर्च बिशप को खुशामदीद कहा गया। जो हमें रूहानी बातनी आज़ादी बख्शता है कि हम हर एक को प्यार करें और हर एक को अपने बराबर प्यार करें जैसे कहा गया है। तकरीब में पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रजा खरल, सिटी 42।
मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगे इस ब्रेक। लाहौर के असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अहसन की रस्म कुल डिफेंस में अदा की गई। अहम शख्सियात समेत रिश्तेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिफेंस एस ब्लॉक में बहरिया टाउन लाहौर के असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अहसन की रस्म कुल अदा की गई, जिसमें चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान मुजीबुर रहमान शामी, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान, जस्टिस रिटायर्ड अमीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इदरीस, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इदरीस मोहसिन, कर्नल रिटायर्ड अली एहसन, कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद और कर्नल रिटायर्ड शाहिद। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी पर्चम बनाने के रिकॉर्ड के हवाले से नेशनल हॉकी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2014 का पहला गिनीज रिकॉर्ड कल नेशनल हॉकी स्टेडियम में बनाया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी झंडे के इस रिकॉर्ड के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल और वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से कद आवर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी और रिकॉर्ड बनाने वाले तलबा को मुहैया की जाने वाली सहूलियात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत खेला गया रग्बी टूर्नामेंट DHA-1 ने 0 के मुकाबले में 27 स्कोर से जीत लिया। डिफेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए रग्बी इवेंट के फाइनल में DHA-1 और वॉल्टन क्लब मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें DHA-1 ने यकतरफा मुकाबले के बाद वॉल्टन क्लब को 0 के मुकाबले में 27 स्कोर से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से दाऊद गुल ने नुमाया खेल का मुजाहरा करते हुए टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इससे कबल खेले गए पहले सेमीफाइनल में DHA-1 ने AI क्लब को 0 के मुकाबले में 47 पॉइंट से हरा दिया। आज़ाद रॉयल पाम में मारूफ इंडियन बैंड स्टीरियो नेशन की परफॉर्मेंस जारी है। हमारे संग नाचो, I am a disco dancer, I am a disco dancer. But to live, move back, put your hands in the air. Don't be anxious, better be गाता कोई पाता नहीं था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से।